यस बच्चा लोग, let's get started with the next chapter. Now this is more of a practical nature, divisional transfer pricing. Now what do we mean by that? See, whenever you talk about a company which is a manufacturing unit, it manufactures finished goods which can be sold in the market. And how do we decide selling price for this? We have already discussed that in pricing strategy. याद है ना? New product, new for the company, new for the market, skimming pricing, penetration pricing. I'd given you one chart based on that. Now, the finished goods produced by X Limited. The finished goods produced by X Limited is a raw material required by Y Limited. Or I won't say limited, I will talk about divisions. Okay, the company is X Limited, where you have division A and division B. Division A is producing finished goods, which has a external market, which has a local market outside. Division B is also producing finished goods, but to produce this finished goods, you need raw material, and this raw material is actually finished goods of division A. Are you understanding this? So division B will have two options. Either raw material can be purchased from the external market. Either raw material can be purchased from the external market, or it can be transferred by division A. It will get transferred from division A. दोनों options है. So that creates another opportunity for division A. It can transfer its output to division B. Division B produce a finished product. Raw material required to produce that finished product can either be purchased from the external market, or it can be taken from division X. So division X, when you talk about, you have two different market. One is the external market, sell it as a finished goods into the open market, or you can transfer it to division B. This is known as divisional transfer. And we are supposed to decide the transfer price. In simple terms, it is selling price only. But since we are not selling it externally, since we are transferring it internally, it is called as transfer price. So when you talk about divisional transfers, you need to understand several different methods of divisional transfer pricing. If you are transferring output of one division to another division of the same organization, how the pricing can be done? Now, ideally, kaisa hota hai? It is an internal transfer. So technically, if division A transfers 1,000 units to division B, revenue of division A is ultimately purchase cost of division B. तो डिवीजन ए में तुम लोग जो अर्न करोगे वो वैसे भी नलीफाई हो रहा है, बिकॉज इट इज cost of division B. So from company's perspective, if you think, there is no profit unless the product is sold in the external market to an outsider.
So we are now talking about at what price output can be transferred. At what price output can be transferred from one segment, from one department to another department. Now, for that, there are different scenarios to be understood. First scenario is there is no external market. First one is there is no external market. That means transferor department is producing a finished product which does not have any external market. That means production is done with an intention of transferring it internally to another department of the same organization. Now, if that is the case, you take your full cost, you add your profit and charge it to the other department as if you are selling the product. It is captive consumption. Production for consumption. There is no external market. मतलब यार डिवीजन ए एग्जिस्ट ही होता है टू सर्व डिवीजन बी. अब तुम लोग सोच रहे होंगे जब तू इंटरनली ट्रांसफर कर रहा है तो तुझे सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर करने की जरूरत क्या है. इफ देर इज एन इंटरनल ट्रांसफर आइडियली इट शुड बी एट कॉस्ट, क्योंकि कंपनी को तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है. 100% राइट. कंपनी को एक पैसे का प्रॉफिट नहीं है इस ट्रांजैक्शन में, लेकिन बच्चा लोग, अगर मुझे डिवीजन ए के मैनेजर को बोनस देना है तो मुझे डिवीजन ए मैनेजर का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना पड़ेगा. हाउ विल यू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस? कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. तो अगर 100 रुपए में यह प्रोडक्ट बनाता है, 20 रुपया प्रॉफिट चार्ज करता है और 120 में वो ट्रांसफर करता है, तो 20% is the profitability of division A. And that's how I can evaluate his performance. And the bonus can be given. अब तुम लोग और सोच रहे होंगे कि यार तो ये 120 में ट्रांसफर क्यों करता है? मारना 100 रुपया प्रॉफिट और भेज 200 में मटेरियल, इसको तो लेना ही पड़ेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. बिकॉज एट द सेम टाइम Division B will be allowed to buy material from the open market. So the company X Limited has created a competition in-house. Division B says, I am getting material from the market at 115. Why should I pay you 120, Mr. A? I will at the most pay you 115. अब अगर ये बार्गेन नहीं करेगा तो he will lose its existence, because if division A manager does not transfer at 115, division B will start buying the material from the outside at 115. You don't need division A because division A exists exclusively for serving division B. अगर डिवीजन ए का फिनिश गुड्स जो डिवीजन बी का मटेरियल है, अगर वो मटेरियल डिवीजन बी बाहर से खरीदना शुरू कर देता है तो डिवीजन बी आइडियली डजंट नीड डिवीजन ए. तो ये बोलेगा नहीं 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 भाई, पेट पे लात मत मार, 115 में ले ले. अब इसको 115 में अगर ट्रांसफर करना है 20 रुपए का प्रॉफिट मेंटेन करके, so the cost has to be brought down to the level of 95. Automatically, you can experience reduction in cost. So because of the competition which is created by the company internally, you can actually experience cost reduction at each stage. अगर हर एक डिवीजन मैनेजर अपने अपने आउटपुट की कॉस्ट इस तरह से रेस्ट्रिक्ट करने लगा
So automatically overall cost structure will also go down. No? You understood what is the impact of that in-house competition created by the company? अरे अर्नव, मैं नहीं बनाता हूँ इसका मतलब कोई और नहीं बनाता, ऐसा थोड़ी है. देयर कैन बी अ कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, नो. ऐसा क्या करता है? चलो ठीक है. You are manufacturing integrated circuits, okay, and you are delivering those circuits to your own division, manufacturing mobile. अब तू अगर इंटीग्रेटेड सर्किट बनाना मार्केट में नहीं बेचता, तू नहीं मैं मार्केट में बेचता, मतलब ऐसा थोड़ी है कि मार्केट में और कोई इंटीग्रेटेड सर्किट्स नहीं बनाता. हाँ, तो प्रोडक्ट का एक्सटर्नल मार्केट है, लेकिन डिवीजन का एक्सटर्नल मार्केट नहीं है. प्रोड्यूस करना अलग बात होती है और डिस्ट्रीब्यूट करना अलग बात होता है. आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिस्ट्रीब्यूशन. मैंने ये नहीं बोला कि प्रोडक्ट इज नॉट मार्केटेबल, मैंने बोला वी डोंट हैव एक्सटर्नल मार्केट. काहे कंफ्यूज आ रहे हो भाई? देखो, मेक और बाय डिसीजन हम लोग ने डिसीजन मेकिंग में किया है. मैं अगर बाय करूं तो 120 रुपया पर यूनिट देना पड़ेगा. अब मैं सप्लायर को 120 रुपया दे रहा हूं, इसका मतलब इसमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, दुनिया भर के ओवरहेड्स प्लस प्रॉफिट इन्वॉल्व है. यही चीज अगर मैंने इन हाउस प्रोड्यूस करना शुरू किया तो शायद 100 रुपए में बन जाएगी, क्योंकि उसमें सिर्फ मटेरियल, लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन्वॉल्व होगा. इनफैक्ट इफ आई एम यूजिंग द सेम रिसोर्सेज इन द फैक्ट्री, शायद फिक्स कॉस्ट भी ना हो, बिकॉज आई एम यूजिंग द सेम रिसोर्सेज. फैक्ट्री की एक जगह खाली थी, आइडल कैपेसिटी थी, आई यूटिलाइज दैट फॉर प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल. तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी 120, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, प्रॉफिट कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होगा. दैट इज व्हाई वी कुड प्रोड्यूस इट इन 100. तो मैंने वो यूनिट सेटअप ही इसलिए किया है ताकि मैं डिवीजन बी को हेल्प कर सकूं. दैट मींस फॉर डिवीजन ए there is no external market. I'm not saying there is no external market for the product. अब बात समझ में आई? अर्णव, श्रीजा, क्लियर है? तो आपको समझा? डिवीजन ए 120 में ट्रांसफर करता है, डिवीजन बी बोलता है नहीं चाहिए, 115 में देता है तो बोल ओके, 115 में देगा तो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कॉस्ट रिड्यूस करनी पड़ेगी, अदरवाइज माय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन विल बी नेगेटिव. सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म बेटर, हाँ प्रियांक, अरे लिखा है ना नो एक्सटर्नल मार्केट. डिवीजन ए बाहर सेल नहीं करता, क्योंकि एक चीज याद रखो, you might have set division A just to support division B, so that instead of buying material at 120, 130, I can produce it in-house at 100 and use it. काफी सारे बिल्डर्स होते हैं जो सीमेंट और जो कंक्रीट होता है वो रेडी मिक्स खरीदते हैं, आरएमसी बोलते हैं उसको. बट देयर आर सम बिल्डर्स, बिग बिल्डर्स हु हैव देयर ओन आरएमसी प्लांट, जो वहीं पे कंक्रीट जनरेट होता है, वहीं पे कंक्रीट बनता है, वहीं पे यूज होता है. तो नेचुरली इट इज कॉस्ट इफेक्टिव. 8-10% कॉस्ट भी कम हो गई तो भी, अगर 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 8% कॉस्ट कम होती है तो भी ह्यूज अमाउंट, 40 करोड़ बच गया आपका. सो व्हेन यू सेट अ प्लांट प्रोड्यूसिंग raw material to be used in your own business, you're not incurring distribution cost, you're not interested in distribution cost, you're not interested in charging profit. So my intention says there is no external market for me. The department exists only for serving my transferee department.
बात समझ में आई? अरे यस और नो? ओके, सो एक ऑप्शन है आपके पास, अगर एक्सटर्नल मार्केट है ही नहीं तो जितनी भी कॉस्ट आपने इनकर की होगी, नेचुरली प्रोडक्शन कॉस्ट ही इन्वॉल्व होगी। एट द मोस्ट कोई फिक्स कॉस्ट आ सकती है, एंड देन यू चार्ज प्रॉफिट। बट इफ external market exists, अब ध्यान से सुनना, अगर एक्सटर्नल मार्केट एग्जिस्ट होता है तो ट्रांसफरर डिपार्टमेंट विल हैव टू ऑप्शंस, और रादर थ्री ऑप्शंस: sell it in the market, transfer it to another division of the same organization internally, or else partly sell in the open market, partly serve your counterpart in the same organization. करेक्ट? उसके लिए आपको एक चीज कंफर्म करनी पड़ेगी, इज देयर एनी आइडल कैपेसिटी? इज देयर एनी आइडल कैपेसिटी? आइडल कैपेसिटी अगर है, आइडल कैपेसिटी अगर है, अगर आइडल कैपेसिटी है तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है। आइडल कैपेसिटी है तो यूज कर लो, एंड सिंस इट इज आइडल कैपेसिटी, मतलब एक्सटर्नल मार्केट सेटिस्फाई करने के बाद, एक्सटर्नल मार्केट का डिमांड फुलफिल करने के बाद, देयर इज सम कैपेसिटी व्हिच इज लेफ्ट अनयूटिलाइज्ड, मैं और भी यूनिट्स अगर बना सकता हूं, तो कैन आई से there will be only variable cost incurred on those extra units, because any which way my fixed cost is getting recovered based on what I am selling in the open market. So in that case, I can always think of going for variable cost plus profit. I can think of going for variable cost plus profit. Because if there is an idle capacity, I am talking about additional unit. जैसे suppose for example, 10,000 units बना सकते हो. This is what your capacity is. Capacity 10,000. 9,000 you are already selling in the open market. तो अगर ये 1,000 यूनिट्स नहीं भी बनाए तो भी फिक्स कॉस्ट तो यहाँ पे रिकवर हो ही रही है। तो अगर मैं ये 1,000 यूनिट्स बना भी लेता हूं तो इन 1,000 यूनिट्स के लिए the only cost that will get incurred is of a variable nature. You will need material, you will need labor, you will need direct expenses, you will need variable production overheads, you will need electricity, but you won't need rent because it is any which way getting recovered here. So the only cost getting incurred on additional unit is variable. So variable cost plus profit can be one of the options. You may also think of charging variable cost plus some percentage of fixed cost. यार थोड़ा तो फिक्स कॉस्ट चार्ज करना चाहिए कस्टमर को, ऐसा मौका ऐसा छोड़े क्यों? That is also one of the options available. Another option available is whatever full cost you have incurred on producing that output plus profit you can charge. Now, when I say this, it is basically the total cost incurred for producing the output plus some profit. And there is one more possibility.
You may also charge a price which includes profit sharing. Whatever profit transferee will earn by using the material, by producing the finished goods, by selling that finished goods, some profit percentage will also be added to the variable cost structure and it can be decided. आपको समझ में आया? एक्सटर्नल मार्केट एग्जिस्ट करता है और अगर आइडल कैपेसिटी है, एग्जिस्टिंग मार्केट, एक्सटर्नल मार्केट एग्जिस्ट करता है लेकिन आइडल कैपेसिटी है, एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, तो भाई वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करो, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट परसेंटेज करो, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फुल कॉस्ट करो, फुल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करो, चलेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ट्रांसफरी कंपनी इज अर्निंग 20% प्रॉफिट, तो ट्रांसफरी कंपनी इज गोइंग टू अर्न 10 lakh rupees प्रॉफिट, आई कैन ऑलवेज टेल देम पे मी वेरिएबल कॉस्ट प्लस 5% ऑफ प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, that will be the transfer price. तो 1000 यूनिट्स अगर मैं ट्रांसफर करता हूं तो 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस 5% of the profit that will be earned by the transferee company by selling the product in the market. Arnav, now is this clear? This is called profit sharing basis. समझा ना? वेरिएबल कॉस्ट तो चार्ज करूंगा ही, प्लस अगर तू मेरा माल यूज करके X रुपीस कमा रहा है तो मुझे उसका 5% चाहिए, so that will be the variable component. Some organizations prefer this because this is the best way of maintaining the quality. क्योंकि मैंने अगर इंफीरियर क्वालिटी का रॉ मटेरियल दिया तो इंफीरियर क्वालिटी का फिनिश गुड्स बनेगा ट्रांसफरी कंपनी में, ट्रांसफरी डिवीजन में। तो मार्केट में अगर ट्रांसफरी डिवीजन पिटता है तो उसके प्रॉफिट का असर, उसके लॉस ऑफ प्रॉफिट का असर मुझ पे भी आएगा। तो मुझे अगर मेरा 5% ज्यादा मैक्सिमम चाहिए तो मुझे क्वालिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, ये सब कब? जब आइडल कैपेसिटी है। व्हाट इफ देयर इज नो आइडल कैपेसिटी? इफ देयर इज नो आइडल कैपेसिटी, इन फुल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट भी आएगी। खुशी, you can always consider this as full cost plus profit. You can also consider this as total cost plus profit. Any single cost incurred by me for producing those units, variable, fixed, absorbed, anything of that sort, meri marzi. Because ultimately, see, these are only different ways of charging the cost. लेकिन ये सारे factors transferee company accept भी तो करना चाहिए. But that is another issue. Khushi, is this clear? Okay. Now, if there is no idle capacity, इसका मतलब आपकी capacity 10,000 units थी. Division A, transferor division, produces 10,000 units. Capacity of division A is also 10,000 units. 10,000 units can be produced. 10,000 units are getting produced. That means ideally there is no idle capacity. All those 10,000 units produced are sold in the external market. All those 10,000 units produced are sold in the external market. If those 10,000 units are sold in the external market, if those 10,000 units are sold in the external market, and now if there is a need of transferring 1,000 units internally, can I say I will have to sacrifice? I will have to sacrifice sale of 1,000 units which are going to get sold, which are going to get sold outside the market, outside organization. 10,000 की कैपेसिटी है, 10,000 बना रहा हूं, पूरा 10 का 10,000 मार्केट में बेच रहा हूं। ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे 1000 यूनिट ट्रांसफर करने पड़े
तो मुझे 10,000 में से 1,000 यूनिट्स निकालने पड़ेंगे ट्रांसफर करने के लिए। इसका मतलब आई एम गोइंग टू सैक्रिफाइस माई सेल्स ऑफ 1,000 यूनिट्स in terms of external market. That means there is an opportunity cost. अगर ये 1,000 यूनिट्स अगर ये 1,000 यूनिट्स मैं ट्रांसफर नहीं करता इंटरनली, if I wouldn't have transferred these 1,000 units internally, I would have sold these 1,000 units in the market and I would have earned the market price. Nothing doing. I don't have a choice. I will transfer at market price. भाई 100 रुपए में मैं मार्केट में बेच रहा हूं, तेरे चक्कर में आई विल बी लूजिंग 100 रुपीज, तो तू दे दे। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल माय ट्रांसफरी डिपार्टमेंट। क्या आपको ये चार्ट पूरा समझ में आया? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ, चलो कॉपी कर लो इसको। लेट मी नो वंस यू कॉपी एवरीथिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में सब कुछ आएगा, वेरिएबल कॉस्ट तो आएगी प्लस प्रॉफिट आएगा। देखो आपके जेब से जो जा रहा है शिवानी, आपके जेब से जो जा रहा है वो तो आप लोग वापस लेके आओगे, प्लस प्रॉफिट में भी शेयर मारोगे। So when I talk about profit sharing, it is obvious that I'm going to charge the existing cost which I have incurred. मैंने वेरिएबल खर्च की तो वेरिएबल प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, मैंने फिक्स भी खर्च की तो वेरिएबल प्लस फिक्स प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। दीज आर ऑल सब्जेक्टिव, ये सब डिपेंड करता है म्यूचुअल एग्रीमेंट पे। अगर ट्रांसफरी एग्री करता है तो ये होगा, वरना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेट मी नो वंस यू कॉपी एवरीथिंग। चलो डन। ओके, नाउ you need to understand
one more important concept, and that is range of transfer pricing. You need to understand the range of transfer pricing. Now there will be a transferer transferring something to a transferee. Now suppose if the product is available at 110 in the market, do you think transferee will accept transfer beyond 110? नो। ठीक है, मतलब रेंज का एक हिस्सा मुझे मिल गया, and that is market price. रेंज का एक हिस्सा मुझे मिल गया, and that is market price. This is a maximum ceiling limit. And if there is an idle capacity, the only cost incurred by the transferee, only cost incurred for the transferer is variable cost. Am I right? You step into the shoes of a transferer and tell me, will you accept an offer of transferring the output at any price less than variable cost? No. इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ट्रांसफरर एंड द मार्केट प्राइस कैन बी द रेंज. मार्केट प्राइस के ऊपर ट्रांसफरी विल नॉट एक्सेप्ट इट, एंड वेरिएबल कॉस्ट के नीचे ट्रांसफरर विल नॉट एक्सेप्ट इट. प्रॉफिट इज कंडीशनल. प्रियांक, समझ नहीं रहा है तू. मैं मिनिमम प्राइस ढूंढ रहा हूं. वेरिएबल कॉस्ट में भी मैं एहसान कर दूंगा ट्रांसफर का. ठीक है यार, चल मेरे को 25 रुपए में पड़ रहा है, 25 दे दे. है तो अपना ही बंदा, अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन है तो अपना ही बंदा. हाँ, लेकिन अपना ही बंदा है बोल के मैं वेरिएबल कॉस्ट के नीचे नहीं जाऊंगा. सो माई सीलिंग लिमिट इज वेरिएबल कॉस्ट. आई विल नॉट गो बिलो दैट. तो किसी भी ट्रांसफर प्राइसिंग का रेंज क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ट्रांसफरर डिपार्टमेंट उससे लेके मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट. अरे ऑब्वियसली ना अर्णव, क्या कर रहा है यार तू? मैं जो आइटम यहां से ट्रांसफर करूंगा उसकी मार्केट प्राइस. यार तू भी ना. चलो, डिवीजन ए produces cloth which is transferred to division B that produces, क्या लिखता है वो, that produce shirts. So instead of buying cloth from the market, there is an internal transfer. अब मार्केट में रेट चल रहा है 500 रुपया पर मीटर. मार्केट में रेट चल रहा है 500 रुपया पर मीटर. मतलब जो भी मेरा कॉम्पिटिटर है डिवीजन ए का क्लॉथ वाला, वो 500 रुपया पर मीटर में बेच रहा है. तो विल यू एज अ डिपार्टमेंट बी, डिवीजन बी मैनेजर, विल यू accept transfer price beyond 500 for cloth? No. अच्छा, क्लॉथ बनाने के लिए मुझे 100 रुपया पर मीटर खर्चा आता है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल. चलो, फिक्स्ड कॉस्ट तो ऑप्शनल है, आएगी या नहीं आएगी, बट वेरिएबल कॉस्ट तो हर बार आएगी ना रे. तो यू एज एन इंचार्ज ऑफ डिवीजन ए, विल यू बी comfortable in transferring it at less than 100 per meter? The answer is no. नहीं समझे. टाइपो बाबा.
आई मीन लिखो, आंसर दो। आर यू गाइज अलाइव? क्विकली। यस सर, क्या अलाइव के? अरे वो मुझे पता है अलाइव वो। विल यू एक्सेप्ट द ट्रांसफर प्राइस लेस देन द वेरिएबल कॉस्ट? नो। मतलब 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 मेरे लिए रेंज क्या हो गई ट्रांसफर प्राइसिंग की? वेरिएबल कॉस्ट टू द ट्रांसफरर एंड मैक्सिमम मार्केट प्राइस 100 to 500, करेक्ट। समझा? क्या होता है ना, तुम लोग कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचोगे, अगर ये वेरिएबल कॉस्ट से भी कम में बेचेगा, अगर ये वेरिएबल कॉस्ट से भी कम में चार्ज करेगा, तो इसको लॉस होगा, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। और मार्केट प्राइस से अगर ज्यादा दे रहे हो तो एक चीज याद रखना, एज अ कंपनी जिसकी ये दो डिविजन है, एज अ कंपनी यू विल बी एट लॉस। सो दिस इज अ मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस रेंज। Transferor will not agree for less than variable cost, and transferee will not agree for more than market price. So this was important part for us, understanding various transfer pricing strategies. And this was another important part, range of transfer pricing. Have you guys understood this? Chalo. So sir, this is what I wanted to ask. Actually, maximum would be the price of shirts. अरे यार, मैंने बोला 500 रुपया पर मीटर। शर्ट पर मीटर में खरीदता है क्या? अरे यार, it's not your mistake, it's not my mistake, it's a mistake of time, 7 to 2, but can't help it. It's a final, so option नहीं है अपने पास। You understood? अरे अर्णव, समझा के नहीं रे बेटा? दिमाग नहीं चल रहा है अब तो, चला भी मत, सिर्फ कान खुले रख। देख, जितना डिटेल में समझा सकता हूँ उतना समझाया मैंने, डिटेल में एग्जांपल देके। हम्म। आई होप अदर्स आर कंफर्टेबल, या बाकी लोगों ने गिव अप ही कर दिया है। आइदर दे आर कंफर्टेबल और यू, और दे हैव गिवन अप। कंफर्टेबल है, ठीक है। ओके, 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 थैंक यू सो मच। जिंदा है। गुड टू सी, गुड टू हियर दैट अनुज, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब प्रॉफिट कैसे ढूंढोगे? बड़ा मजेदार फॉर्मेट है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। लेट मी ड्रॉ द फॉर्मेट फॉर यू। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में एक होगा ट्रांसफरर का कॉलम, एक होगा ट्रांसफरी का कॉलम, और एक होगा कंपनी का कॉलम। ओके। एक होगा ट्रांसफरर का कॉलम, एक होगा ट्रांसफरी का कॉलम, और एक होगा कंपनी का कॉलम। टोटल। यस अनिरुद्ध, आई एम प्राउड ऑफ यू। वी हैव कंफर्टेबली गिवन अप। ऐसा मत करो बच्चा। चलो ध्यान दो। ओके, हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट? सेल्स माइनस कॉस्ट, बराबर है। अब सेल्स जब लिखने जाऊंगा ना मैं, तो फॉर ट्रांसफरर डिपार्टमेंट, अच्छी तरह से आंख खोल के सुनो, फॉर ट्रांसफरर डिपार्टमेंट देयर विल बी टू सेल्स। आई थिंक माय सिस्टम हैज आल्सो गिवन अप।
आ गया आ गया। या okay, for transferor company there can be two types of sales. One is external sales and the other one is transfer. बाहर वाले को प्रोडक्ट बेचने के बाद जो प्रॉफिट कमाया दैट इज एक्सटर्नल सेल्स, और जिस प्राइस पे आपने ट्रांसफर किया है टू द अदर ट्रांसफरी इज योर ट्रांसफर प्राइस। करेक्ट। लेकिन ट्रांसफरी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो देर विल बी ओनली एक्सटर्नल सेल्स, क्योंकि वो तो किसी को ट्रांसफर नहीं कर रही है। समझ में आई बात? सो दिस इज योर सेल्स। अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर, इसमें से माइनस करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर। ओके, टोटल कॉस्ट की अगर बात करूं तो दोनों में वेरिएबल कॉस्ट आएगी। फिक्स्ड कॉस्ट की अगर बात करूं तो वो भी दोनों में आएगी। लेकिन इस बार ट्रांसफरी कंपनी will have one more cost which is sales value of transferer। अगर ये 10 lakhs है, transferor company is transferring output at 10 lakhs, that means transferee company is receiving material for 10 lakhs, so it becomes material cost for transferee company. There will not be any cost written in the transferor for this. This will give you total cost. This will give you total cost, which is B, and your profit will be A minus B. समझा ये पार्ट? I hope this is clear now. So this is the cost to be recorded here. चलो बताओ मुझे यहाँ तक कोई डाउट है तो। ये समझा? Yes. So this is revenue of transferor, which is cost for transferee. इसीलिए बोला मैंने कंपनी अफेक्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के लिए इनकम हुआ, यहाँ पे कंपनी के लिए ही एक्सपेंडिचर हुआ, so that gets nullified. Still we do it because we want to evaluate performance of the transferor. So total sales external आएगा, इस सेल्स का कोई मतलब नहीं है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट आएगी, इस कॉस्ट का भी कोई मतलब नहीं है। So that will give you total cost here. A माइनस बी करोगे तो प्रॉफिट विल टैली विद दीज टू प्रॉफिट्स, क्योंकि ये तो वैसे भी नलीफाई हो गया, मैंने लिया ही नहीं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कॉपी दिस।
रेंज ऑफ प्राइसिंग ये हुआ, वेरिएबल कॉस्ट टू ट्रांसफरर से लेके मार्केट प्राइस, इसके बीच में ही प्राइस कही रहेगी. Transferee will not agree to pay more than market price, and transferor will not be able to transfer it below variable cost. और एक पार्ट बोलूं, अगर यहाँ पे what if the transferor doesn't have an idle capacity? So उसका जो एक्सटर्नल सेल्स है वो सैक्रिफाइस करके ट्रांसफर करना पड़ेगा. तब तो मैं वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं, मैं तो मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर करूंगा. व्हाई फिक्स कॉस्ट, इवन प्रॉफिट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट इज. समझ में? अरे ये इधर लिखा था ना बाबू, इफ देयर इज नो आइडल कैपेसिटी, तुम लोग को चाहिए तो इधर एक नोट लिख लो. नो, if there is no idle capacity at market price, as external sales will get sacrificed, that is opportunity cost. इसको ऐसा लिख दो ब्रैकेट में, समझा ना? तो अगर एक्सटर्नल सेल्स है और आइडल कैपेसिटी नहीं है, तब तो याद रखना वेरिएबल कॉस्ट भी वो ट्रांसफर नहीं करेगा, मार्केट प्राइस के नीचे आएगा ही नहीं. व्हाई शुड आई बी एट लॉस? Where can we exclude interdivision profit? Piyush Kumar, if you see, we haven't considered the transfer amount at all. ना मैंने उसको रेवेन्यू में लिया है, ना मैंने उसको कॉस्ट में लिया है, मतलब it is already skipped. So your profit is always net of the transfer figure. क्योंकि एक का रेवेन्यू दूसरे की कॉस्ट है, तो वो वैसे भी नलीफाई हो जाता है when you get the total. ये x इधर आता तो ये x भी इधर आता तो वैसे भी कैंसिल होने वाला था ना, तो लेना ही नहीं. I hope you guys are clear with it. Sure? Not at all. करण क्यों रे ऐसा पूछ रहा है? Division transfer pricing chart, ये ले. Yes, Karan, why did you ask me that? बहुत पढ़ा है रे, बहुत मेहनत की है. When I was teaching BCom, I was ready for inter. When I started teaching inter, I was ready with finals. When I started teaching final, I was ready with SEMA and all those certified Institute of Management Accounting. मुझे आदत है पढ़ने का. Because if you study more, you will be able to deliver more. That is a simple reason. क्योंकि मुझे हर एक स्टेज पे बच्चे के लेवल पे जाके पढ़ाना पड़ता है, तो फॉर दैट आई नीड टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज. सो दैट इज अ रीजन माय सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल इज द फर्स्ट वन व्हिच इज लॉन्च इन द मार्केट. और कोई अभी तक आया भी नहीं. वी स्टार्टेड विद द बैच. लोगों ने सब्जेक्ट चेंज कर दिए. आई एम आउट विद द स्टडी मटेरियल, दैट टू अ लाइव बैच. ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड एक ठोक दिया है. इट्स अ लाइव बैच, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन. नहीं ध्वनि, ऐसा नहीं है. देयर आर सो मेनी गुड फैकल्टीज आल्सो. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू वर्क हार्ड. तुम लोग अगर सिर्फ पैसे को देख के टीचिंग में घुसोगे तो कुछ नहीं होने वाला. यू हैव टू एनहांस योर नॉलेज. कल को तुम लोग भी क्वालिफाई हो जाओगे तो यू कांट सिट आइडल. Too much stuff has been deleted from old module, but then too many new things are added.
and that can be done only if you are updated. इनफैक्ट इंटर में भी जब पढ़ाता हूं तो आई गिव यू रेफरेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. देयर आर सो मेनी फैकल्टीज टीचिंग कॉस्टिंग, दे डोंट इवन नो दैट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जिस्ट. आईसीआई डज दैट, आईसीआई डज दैट करके पढ़ा देते. अपने अपना प्रॉब्लम है, क्या कर सकते. सी द सिंपल चीज याद रखना, तुम लोग कल चार्टर्ड बनोगे ना, चार्टर्ड द डिग्री विल बी रिक्वायर्ड फॉर यू टू एंटर इनटू द मार्केट. बट वंस यू आर इन द मार्केट, योर enhanced knowledge and your skill, expertise will take you to a different height. तुम लोग अगर ये सोच रहे हो कि सीए बनने के बाद तुम लोग को प्रमोशन मिलेगा, तो नहीं होगा ऐसा. सीए बनने के बाद तुम लोग को एंट्री मिलेगी. एंट्री मिलने के बाद द रियल कंपटीशन बिगिंस. I have seen so many chartered accountants who have performed astonishingly simply on the basis of their efforts. Read more. जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे. Nothing is enough. याद रखना. I still read. Now I'm 44. 21 साल निकाल दिए टीचिंग इंडस्ट्री में. नहीं पढ़ूंगा तो भी किसी भी बैच में जाके पढ़ा सकता हूं, मैं किसी भी लेवल पे पढ़ा सकता हूं. बट मुझे उस गलत फहमी में या उस घमंड में रहना ही नहीं है. बिकॉज इफ आई वांट टू गिव द बेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू बी द बेस्ट. नो, तो पढ़ते रहने का. लाइफ में एक चीज याद रखो, जो मिला वो पढ़ो. आई स्टिल अपडेट माई सेल्फ इन DT, a few sections. I keep on updating myself. मुझे अभी पूरा DT का नॉलेज नहीं होगा, लेकिन फिर भी I can still tell you. Section 1010 gratuity, POGA, 10A I think pension. I don't know. अभी वो सब भूल गया हूँ मैं. But section 36, 36(1), 36(1)(9) is family planning, 1(3) is interest on borrowed fund. थोड़ा थोड़ा याद. Start reading. Nothing is impossible. Trust me. And just have faith in yourself. सबसे पहले एक चीज याद रखना, just have faith in yourself. मुझे नहीं आएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कैसे होगा. Stop thinking all these negative things. You are the best. If you have reached at this stage, you will go ahead also. Put in lot of efforts. Chalo, let's put in efforts now. See. This is a chart. Of course, we have discussed the chart in a much better way. गोल कॉन्ग्रुएंस कंसेप्ट विल डिस्कस लेटर. उसके लिए थोड़ा तुम लोग को तवा गरम करना जरूरी है, तो विल डिस्कस दैट एट द एंड. देखो, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट होगा तो क्या करने का. इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइस आल्सो विल डिस्कस. ये पहले डिस्कस कर देंगे. दिस विल बी डिस्कस लास्ट. ये सेकंड लास्ट होगा. कैपेसिटी कंस्ट्रेंट होगा तो क्या करना है, यू ऑलरेडी नो. इफ देयर इज अ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, there is an opportunity cost because you are sacrificing your external sales. So all market based, share profit, marginal cost based मतलब variable cost based, standard cost based, full cost based. Full cost मतलब total cost, then cost plus markup, cost plus profit, and negotiated price. Negotiated price मतलब मैंने जो range का example दिया था, मैं variable cost के नीचे नहीं आऊंगा, मैं market price से ज्यादा नहीं दूंगा. Okay, तो somewhere you have to break that ice. And somewhere you have to adjust, agree on a particular price. क्योंकि एक चीज याद रखना, तुम लोग की कंपनी भी नजर लगा के बैठी होगी तुम लोग पे. It's not only about division A and division B. It's about company also, because division A का loss can subsequently be loss for the company also. अगर एक्सटर्नल मार्केट से मैं सैक्रिफाइस करके इसको दे देता हूं, तो एक्सटर्नल मार्केट में मार्केट शेयर इज गोइंग डाउन. सो नॉट ओनली डिविजन ए, बट इवन द कंपनी इज टेकिंग द रिस्क. ये सारा ओवरव्यू, yes, all these perspectives are to be taken into consideration when you decide the transfer pricing. Utility of transfer pricing, as I said, performance evaluation, employee engagement and compensation, idle capacity है तो resource allocation, taxation and profit remittance. I hope you recollect this. मैंने बोला था ना, 20 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए अब 120 से सेलिंग प्राइस अगर 115 होगी, तो he will have to bring down cost from 100 to 95. That means it is cost reduction.
कॉस्ट रिडक्शन क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है। प्लस मेरे सारे एम्प्लॉयज को मैं एंगेज करके रख रहा हूं। आई हैव आइडल कैपेसिटी, वर्कर्स आर सिटिंग आइडल, लेट देम वर्क, लेट देम यूज दिस आइडल कैपेसिटी। वैसे भी इनको मैं पूरे महीने का पे करने वाला हूं, वैसे भी रिसोर्सेस पड़ा है, तो खाली बैठने से अच्छा इनको काम पे लगा दूं। आई विल प्रोड्यूस समथिंग विच विल बी कंज्यूम इन हाउस, तो उतना माल मुझे बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज विल बी टेकन केयर ऑफ। मैं सैलरी दे रहा हूं 50,000 वर्कर को, वर्कर खाली बैठा है क्योंकि उसका एक्सटर्नल सेल्स खत्म हो गया, एक्सटर्नल जो भी प्रोडक्शन था वो खत्म हो गया। अब प्रीमाइसेस भी है, रिसोर्सेज भी है, आइडल कैपेसिटी भी है, वर्कर भी खाली बैठा है, उसको एनी विच वे पे कर रहा हूं। सो देयर इज नो रिलेवेंट कॉस्ट ऑन लेबर, एनी विच वे आई एम गोइंग टू पे हिम। क्यों ना इसको यूटिलाइज कर लूं। प्रीमाइसेस भी यूटिलाइज कर लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, थोड़ा सा मटेरियल यूज किया, तो इलेक्ट्रिसिटी प्लस मटेरियल कैन बी चार्ज एज अ ट्रांसफर प्राइस। मिनिमम कॉस्ट, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। 10,000 खरीदने वाला था, 4,000 अगर मैं बना के दे दूं तो मेरा यूटिलाइजेशन तो होता ही है, प्लस 10,000 के बदले सिर्फ 6,000 विल बी परचेज एट मार्केट प्राइस, एंड बैलेंस विल बी एट द मिनिमम कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वर्कर को तो वैसे भी पे कर रहा हूं। नो एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट आई एम गोइंग टू इनकर। तो मटेरियल का खर्चा और इलेक्ट्रिसिटी खर्चा, दैट्स इट। जस्ट इमेजिन मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में कितनी कम प्राइस हो सकती है। ठीक है ना, 10,000 नहीं बना सकते, 4,000 बना सकते हो, बना, यूज कर। तो 10,000 के बदले 4,000 का मैं इंटरनली ट्रांसफर कर दूंगा, 6,000 मार्केट से खरीद लूंगा, तो भी फायदा ही है। सो एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड कॉम्पेंसेशन, रिसोर्स अलोकेशन भी हो गया, टैक्सेशन एंड प्रॉफिट रेमिटेंस मल्टीनेशनल कंपनीज को, फेयर वैल्यू। Transfer pricing is often associated with arm's length price. Arm's length price means a price which will be charged to any third party. It implies that the price for internal division has to be fair and competent enough, as if dealing with third party. The application of concept of arm's length price is more from taxation perspective. In the accounting records, transfer price would be revenue for the division supplying the goods and services. Matlab it will be transferor. When each division is made profit accountable and any transaction between them becomes more business driven, much like how customers and suppliers compete using bargaining power to set the price. Arriving at a good deal for the division becomes imperative because it influences its profitability. Hence, fair value of a business perspective depends on how division finds the price compatible with the profit targets. Example देखो, division A produces goods at 10 per kg, 10 per unit, transfers the goods to division B, which has additional cost of 5 rupees per unit. मतलब B जो है 10 में खरीदता है, 5 रुपया खर्च करता है, 15 होती है टोटल कॉस्ट, बी बेचता है 16 में और बी कमाता है 1 रुपया। करेक्ट। लेकिन अब क्वेश्चन कहता है द कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ सेटिंग द ट्रांसफर प्राइस एट अ कॉस्ट प्लस 20%। उन्होंने पूछा है प्रॉफिट ऑफ ईच डिवीजन एंड ओवरऑल प्रॉफिट। देखो मैं समझा देता हूं उनका कैलकुलेशन देखने से अच्छा। कितने में बनाए? 10, तो ट्रांसफर प्राइस विल बी 12। अरे यस और नो? ए प्रोड्यूस समथिंग फॉर 10, इशूड एट कॉस्ट प्लस 20%। सो डिवीजन ए का प्रॉफिट कितना है? 2 रुपया, बराबर। अब बी के बारे में सोचो, 10 के बदले 12 में आया, 10 के बदले 12 में आया, करेक्ट। 12 प्लस 5 17 हुआ, 16 में बेचा,
तो डिवीजन बी में हो रहा है लॉस, बराबर। डिवीजन बी में हो रहा है लॉस। कंपनी को आज भी प्रॉफिट है, क्योंकि एक चीज याद रखना, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 का माल बी में गया, बी ने 5 रुपया खर्च किया, 15 में बी ने बनाया, 16 में बेच दिया, तो बी का प्रॉफिट 1 रुपया। एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट 1 रुपया, और चेक कर लो ना, ए का प्रॉफिट 2 रुपया, बी का लॉस 1 रुपया, नेट इफेक्ट इज 1 रुपया। समझा? एक टेबल में डाल के दिखा देता हूँ, चलो। कितने में बनाया? 10 में, बराबर। सो 10 में बनाया, 12 में ट्रांसफर किया, तो 2 रुपया, तो 2 रुपया प्रॉफिट हुआ, बराबर ना रे बाबा? 10 रुपया कॉस्ट है तो 2 रुपया प्रॉफिट। अच्छा, ये 12 रुपए का माल है, 16 में बेच रहे हो, 5 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करके, तो ये 17 है, ये 17 है, कॉस्ट 17, ट्रांसफर ही डिपार्टमेंट का कॉस्ट 17, सेलिंग प्राइस 16। आइला, देर इज अ लॉस, होने देना। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स 16, ट्रांसफर वांसफर हम लोग लिखते नहीं है, तो ये भी 16, 10 + 5 ये 15, तो ये भी 15। ओए 16 - 15, 1 रुपया तो प्रॉफिट हो ही रहा है। मेरा टेबल is capable of giving you answer of any question of transfer price। दुनिया इधर की उधर होगी, मेरा सिस्टम कभी फेल नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द होल सिनारियो। इनका देखो क्या मस्त मजेदार सोल्यूशन, फुल दिमाग में शॉट, है ना? अच्छा, सेकंड क्या पूछा है? राइट अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट। क्या एनालिसिस लिखने का अभी? देखो, डिवीजन ए shows profit of 2, while division B shows a loss of 1। I think you guys are crystal clear about it। Division A that incurs 2/3 of its cost, while division B incurs only 1/3 of it। अरे 15 का 2/3, टोटल कॉस्ट इज 15, 15 का 2/3 10, जो डिवीजन ए ने खर्च किया है, और 5 रुपया जो बी ने खर्च किया है, तो टोटल कॉस्ट इज 15, जिसका 2/3 ए ने खर्च किया था और 1/3 बी ने खर्च किया था, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इज फॉर द कंपनी इज दिस। कंपनी की टोटल कॉस्ट 15, कंपनी का प्रॉफिट 1, तो कंपनी का प्रॉफिट इज 6.7%। सो डिवीजन ए ऑलवेज मेक प्रॉफिट, division B being internal, bearing internal markup as much higher rate than the markup it charged to the customer, therefore it is always a loss making unit। कंपनी कमा रही है 6 पॉइंट समथिंग, डिवीजन बी पे कर रहा है 20% प्रॉफिट, तो लॉस मेकिंग ही रहेगा ना डिपार्टमेंट। समझा? ट्रांसफर प्राइस, ए बाबा तुम लोग को समझा ना फर्स्ट क्वेश्चन? ट्रांसफर प्राइस मेथड्स, मार्केट बेस्ड, कॉस्ट बेस्ड, नेगोशिएशन बेस्ड, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फुल कॉस्ट एंड कॉस्ट प्लस मार्कअप, ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है चार्ट में। और यहां से शुरू होंगे असली क्वेश्चंस, जो मैं गलती से भी आज चालू नहीं करूंगा। सर, द प्रॉफिट मार्जिन कुड यू प्लीज? ओके, देख अर्णव, डिवीजन ए ने 2 रुपया प्रॉफिट कमाया, डिवीजन ए का लॉस 1 रुपया, तो कंपनी 1 रुपया प्रॉफिट कमा रही है।
A is spending 10 on producing, B is spending 5 on further processing, तो 15 रुपया तेरी टोटल कॉस्ट है. तो कंपनी 1/15% यानी कि 6.67% कितना प्रॉफिट कमा रही है. कंपनी को 6.67 प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बी एंड अप पेइंग 20% टू ए. दैट इज व्हाई बी इज ऑलवेज लॉस मेकिंग. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. वो तो हमको पता ही है ना, पूरा कैलकुलेशन तो करके देखा हम लोगों ने. हे बछड़ा लोग, सो वी आर फाइंडिंग प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट. हाँ तो सेल्स पे ले ले, बात तो सेम ही होगी. 1 रुपया ऑन 16, 16 रुपए की सेलिंग प्राइस, 1 डिवाइडेड बाय 16 ये आएगा 6.25. बराबर ना. और वो कितना पे कर रहा है? 20%. 20% ऑन कॉस्ट. 20% ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन कॉस्ट. 1/5 ऑन कॉस्ट इज 1/6 ऑन सेल्स. तो 16%, 1/6 का मतलब क्या है? 16.67% पे कर रहा है बी, और कंपनी कमा रही है 6.25. दैट इज वाई द रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि डिवीजन ए का मैनेजर तो मजबूत बोनस लेके जाएगा और डिवीजन बी का मार खाएगा जस्ट बिकॉज ही एक्सेप्टेड अ प्रपोजल ऑफ 20%. और कंपनी को तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि डिवीजन ए की ट्रांसफर प्राइस इनकम इंटरनल सेल्स डिवीजन ए का इस कॉस्ट ऑफ डिवीजन बी, तो वो तो नलीफाई हो जाएगा, तो कंपनी को तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता. आर यू गाइस क्लियर विद द इनिशियल पार्ट ऑफ डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग? ए बछड़ा लोग, चलो अभी मैं सम तो चालू नहीं कर रहा हूं. सम आई विल स्टार्ट टुमारो. अलग अलग मेथड्स हो जाएंगे तो तुमको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा चैप्टर सारे. मैं तुम लोग को जितने भी एग्जांपल लिए वो प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह का वो भी कवर हो जाएगा, इसमें टेंशन मत लो. ओके, सो सी यू टुमारो. अभी आई थिंक मंडे टू थर्सडे ऑल 4 days मॉर्निंग 7 to 9, 7 to 10, राइट? ओके देन, बाय बाय, टेक केयर. थोड़ा टाइम मिले तो पढ़ लेना. आई नो इट इज टू मच. पहले तो ना आंख बंद करके सो जाओ खाना खा के. यू हैव एनी विच वे लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम. सो whenever you get time एक पावर नैप ले लेना 5-10 मिनट का, एंड देन स्टार्ट परफॉर्मिंग. इधर से सीधा भी मोबाइल में इंस्टाग्राम पे जम मत करो. टेक सम रेस्ट. योर माइंड नीड्स रेस्ट. सर फ्राइडे को भी आपका ही लेक्चर है. फ्राइडे का टाइम टेबल आ गया क्या? मेरे पास तो थर्सडे का है भाई. मैं तो रॉ में काम नहीं करता, तो आइडिया नहीं है मुझे. अनिरुद्ध को पता होगा शायद. लास्ट फ्राइडे की बात तो नहीं कर रहे हैं? अरे नहीं रे. क्या रे पीयूष? ऋषि किधर है आजकल? है ऋषि का कुछ कमेंट नहीं आ रहा था, चुपचाप बैठा था लगता है.